Now earlier I started the topic circles. I completed one exercise also in my previous video. In continuation to what I did, I want to continue the proof of this theorem. The theorem says the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. Suppose if I draw a circle and draw a tangent to it, from the center whatever line I am drawing, that is perpendicular to the tangent at the point of contact. This is what I have to prove. See, for that purpose, first what you do is you write the data. What you will write in data is whatever figure says that you write it. Figure says xy is the tangent to the circle at point P, and P is the point of contact, OP is the radius. So what you will write here in the data, xy is the tangent, xy is a tangent, xy is a tangent at P, OP is the radius, OP is the radius. This is what is given to you. Now what you want to prove is to prove what you have to do. This is perpendicular, OP is perpendicular to xy at P. Construction, take a point Q, on xy and join OQ. Okay, now we will go for proof. See children, proof is very simple. The point Q cannot lie on the circle, because if the point Q does not lies on the circle, then xy will become a secant. The point Q cannot lie on the circle, because if it lies on the circle, it becomes the radius. That means clearly the point Q lies outside the circle. And if the point Q lies outside the circle, that means the shortest distance from O to xy is OP, and the shortest distance is always perpendicular distance. In class 9th standard you have studied it. देखिए xy के ऊपर ये पॉइंट Q सर्कल के ऊपर नहीं हो सकता है, सर्कल के ऊपर हो जाएगा तो xy सीकेंट होगा, यहाँ पर कहीं पर होगा तो, या फिर अगर यहाँ पर मान लीजिए इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे होगा तो रेडियस हो जाएगा OQ, वो भी संभव नहीं है। यानी पॉइंट Q सर्कल के बाहर है। अगर पॉइंट Q सर्कल के बाहर है तो इस टैंजेंट को सेंटर से पहुंचने के लिए सबसे नज़दीकी रास्ता है OP, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और नज़दीकी रास्ता हमेशा परपेंडिकुलर होता है। दैट्स ऑल। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो व्हाट आई कैन से, द पॉइंट Q does not lie on circle because xy becomes tangent, becomes secant. अगर ये xy इधर चला गया तो वो secant हो जाएगा दो पॉइंट पे, becomes secant. That means what? That means Q lies outside the circle, तो हम ऐसे बोल सकते हैं of all points of all distance
of all distance from O to xy, OP is the shortest. OP is the shortest distance. OP is the shortest distance. Therefore, OP is perpendicular to xy at P. यानी O से आप कितने भी कोशिश कर लीजिए, कितने भी लाइन ड्रॉ कीजिए, सबसे नज़दीकी लाइन जो है वो है OP, और हमेशा नज़दीकी लाइन ही क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है. सो दिस इज द प्रूफ ऑफ द थ्योरम that of all lines that can be drawn from O to xy, OP is the shortest distance. Next theorem है the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal. इसका मतलब क्या होता है? Let us try to understand the meaning of the sentence. इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए ये सर्कल मैंने बनाया, इस सर्कल मैंने बनाया जिसका सेंटर O है, जिसका सेंटर O है, और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया P, और यहाँ से अगर मैंने सर्कल को टेंजेंट बनाया, सर्कल को मैंने अगर टेंजेंट बनाया PQ और PR, तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई सेम होगी. ये मुझे प्रूव करना है. तो प्रूव करने के लिए मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन किया, OQ को जोड़ दिया, OR को जोड़ दिया और OP को जोड़ दिया. See, I have drawn a circle with center O. P is the point outside the circle. From the point P, I have drawn two tangents PQ and PR. I have to show that these two are equal in length. For that purpose, I have joined OQ, I have joined OR, I have joined OP. And now I will prove how it can be equal. So whatever just now I have told you, same thing I will have to write it, mention in the data. Whatever you say, you have to write in the data. So what you will write in the data here is, in the data you mention that, in the data you mention that P is the point, P is the point outside the circle, outside the circle, outside the circle, whose center is O, whose center is O. PA and PB are tangents, tangents from external point P. अभी आपको टू प्रूव क्या करना है, सिंपल है. टू प्रूव आपको ये बताना है कि PA इक्वल टू PB, PA इक्वल टू PB, ये आपको प्रूव करना है. कंस्ट्रक्शन आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन में आपने जो कुछ भी किया है उसको लिखोगे. जॉइन OP OR एंड OQ. अब प्रूफ, प्रूफ में आप क्या करोगे, थोड़ा ध्यान देना. इन ट्रायंगल OQP और ORP, इस दो ट्रायंगल के अंदर क्या है थोड़ा देखो. इन ट्रायंगल OQP एंड ट्रायंगल ORP. बच्चों बहुत सिंपल है. आई विल से दैट OQ इक्वल टू OR बिकॉज रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल आर ऑलवेज इक्वल. किसी भी एक सर्कल के दो अलग रेडियस नहीं हो सकते हैं. तो मैं कहूँगा OP इक्वल टू OR
फर्स्ट इक्वेशन है बिकॉज रेडियाई ऑफ सेम सर्कल रेडियाई ऑफ सेम सर्कल OP इक्वल टू OR। उसके बाद बच्चों OP इक्वल टू OP होगा बिकॉज कॉमन साइड, यहाँ पर एक गलती हो गई, OQ इक्वल टू OR आना चाहिए था, OQ इक्वल टू OR, OQ इज इक्वल टू OR और OP इक्वल टू OP बिकॉज क्या लिखोगे आप, कॉमन साइड। और बच्चों यानी रेडियस इक्वल हो गया, एक साइड कॉमन हो गया और ये एंगल 90 डिग्री होगा बिकॉज रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पर अभी मैंने आपको प्रूव करके बताया है। तो आप क्या लिखोगे, एंगल OQP इज इक्वल टू एंगल ORP, OQP इज इक्वल टू ORP इज इक्वल टू 90 डिग्री because radius perpendicular to tangent at point of contact। तो बच्चों देखिए RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल में बता रहा हूं आपको, एक राइट एंगल इक्वल है, एक साइड इक्वल है, हाइपोटेनस इक्वल है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ट्रायंगल OQP इज इक्वल टू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ORP। कौन सा रूल यूज किया, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। और बच्चों अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो साइड क्या होगा, PQ इक्वल टू PR होगा और Q होगा बाय CP/CTC। दैट्स ऑल, CP/CTC। बहुत सिंपल है बच्चों। देखिए दोनों थ्योरम को मैं 1-2 ही मिनट में आपको समझा देता हूं। अगर इसको परपेंडिकुलर बताना है तो एक पॉइंट आपको Q लेना पड़ेगा। O से XY तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा और नज़दीकी रास्ता है OP और नज़दीकी रास्ता हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि OP इज़ द शॉर्टेस्ट। ये हो गया इस थ्योरम का प्रूफ। मगर केवल इतना कहने से आपको मार्क्स एग्जाम में नहीं मिलेगा, तो आपको यू हैव टू राइट द डेटा, यू हैव टू राइट टू प्रूव, यू हैव टू राइट द प्रूफ। मगर बड़ी सी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ्रॉम पॉइंट O टू रीच XY OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फिर नेक्स्ट इसको कैसे प्रूव किया, इसको तो बहुत सिंपल प्रूव किया। ये दोनों रेडियस हैं, एक सर्कल के दो अलग रेडियस नहीं हो सकते हैं, तो दोनों रेडियस इक्वल हो गए। एक साइड दोनों में कॉमन है और रेडियस और टैंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। यानी एक राइट एंगल, एक बेस और एक साइड इक्वल है, इसलिए ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बचे हुए दोनों साइड्स क्या होंगे, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने प्रूव किया कि tangents drawn to a circle from an external points are always equal and radius is perpendicular to the tangent at the point of contact. That's all.